السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ڈاکٹر ناظر المسدوسی صاحب، دیگر اطباء الشورا، معززین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا یہ تعزیتی جلسہ میرے دوست، میں اس لیے دوست کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہیں پر یوسف صاحب نے مجھ سے کہا کہ صدیق بھائی آپ مجھ سے کتنے سال بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا میں 2 سال آپ سے چھوٹا ہوں، حالانکہ میں ابھی ریٹائر نہیں ہوا تھا، مگر کیونکہ یوسف بھائی کا دل رکھنے کے لیے میں نے کہا تھا اور انہوں نے مان بھی لیا، اور وہ بالکل سادہ دل انسان تھے۔ ان کی جو روش تھی وہ بالکل سادہ روی ان کے پاس تھی۔ ہمیشہ اسی کمرے میں یا اسی جو ادبی اجلاس کا مقام ہے یہاں پر ہمیشہ انہوں نے مجھے نہاری کھلوائی ہے۔ ہمیشہ ناظر صاحب کو پیسے دے کر جاتے اور ان کا وظیفہ بہت کم تھا، اتنا کم تھا کہ بیان نہیں کر سکتے ہم، اس کے باوجود وہ 200-300 روپے ناظر صاحب کو دیتے اور کہتے کہ صدیق صاحب فلاں دن تشریف لائیے، آپ کو نہاری کھانا ہے۔ تو کیونکہ آج تعزیت ہے، مگر میں تعزیت نہیں کہوں گا، میں ان کو اپنے طور پر تہنیت پیش کروں گا، کیوں کہ تعزیت تو سبھی لیتے ہیں اور مرنے کے بعد جو ان کی خصوصیات ہیں وہ کم بتاتے ہیں اور ان کے شاعر شان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں بتایا جاتا۔ اسی لیے 4000 اشعار مکمل ہونے کے بعد 4000 مشاعروں کی تکمیل کے بعد ان کے اعزاز میں شبیر خان اسمارٹ کے گھر میں ایک تہنیتی تقریب رکھی گئی تھی۔ اس موقع پر میں نے یہ مضمون لکھا تھا جو روزنامے، منصف اور کئی اخباروں میں چھپا، روش اثر سے انکار مشکل ہے۔ روش اثر سے انکار مشکل ہے۔ یہ پھولوں کی پربہار محفل آج ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری ہستی کے لیے سجائی گئی ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، کیا کہوں، کون سے الفاظ استعمال کروں، ان کے اپنے الفاظ ان کی اعلیٰ سوچ کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ مجھے ان کی طرح خوبصورت، دلکش، دلنشیں اور دلچسپ الفاظ استعمال کرنا نہیں آتا۔ وہ نظم نگار بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ ان کا نام سید یوسف تھا۔ آواز کافی ہے نا؟ بیٹھیے، ہمارے دور آفاقی صاحب تشریف رکھیے۔ مشاعرہ تشریف لا چکے ہیں۔ کیا ہے ان کا نام سید یوسف تھا۔ یوسف کے معنی نہایت حسین، خوبصورت، پرجمال، یہ یوسف ثانی یعنی جمال اور یوسف کمال بھی تھے۔ یوسف جب مشاعرے میں جاتے تو مشاعرہ یوسف کے حسن سے چمک اٹھتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ وہ آئے، حسن کی جھلک دکھلائے اور چلے گئے۔ وہ مشاعرے میں آتے تھے، پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ پھرتی ایسی کہ وہ جا یہ جا، کسی نے کیا خوب کہا ہے، میرے یوسف تیری بھرپور زیارت کے لیے، میرے یوسف تیری بھرپور زیارت کے لیے مانگ لایا ہوں زلیخا سے ادھاری آنکھیں، مانگ لایا ہوں زلیخا سے ادھاری آنکھیں۔ وہ روش ہے، ان کا تخلص
روش ہے اور اس اعتبار سے ان کی روش یعنی طور طریقہ رفتار ڈھنگ وضع ویسی ہے جو رفتار بے رنگی ہے جو پہلے کی سو ابھی ہے. سائیکل پر اپنی روش اختیار کرتے اور مشاعروں میں بھی فوراً اپنی روش بدل کر یہ جا ہو جا مگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی روش نہیں بدلتے. اتنے بولے ہیں کہ جلد دوسروں کی باتوں میں آ کر قلم تھام لیتے اور لکھ بھی دیتے مگر جب احساس ہوتا تو فوراً معافی مانگ لیتے اور ندامت کا اظہار نہ صرف زبانی بلکہ تحریری بھی کر دیتے. اس کی زندہ مثال میرے پاس موجود ہے کہ مجھے انہوں نے ایک مضمون دیا تھا, میں نے اخبار میں چھاپا جس صاحب کے خلاف لکھا تھا. دوسرے دن ان کا جلسہ تھا تو ان کو تحریری طور پر انہوں نے معافی مانگی اور ان کو بولا کہ بھائی دوست ہی ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. بہرحال ہر ایرے غیرے تو خیرے کو وہ شاعر ہو یا مفت شاعر یا پھر شعری تاریخی خطاط کا ہنر سکھانے کی کوشش کرتے. غور کر رہے ہوں گے آپ مجھے دکھاؤ تاریخی خطاط کا جو ہے ہنر سکھانے کی کوشش کرتے. کھلے دل سے یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں کہتے, کبھی ہچکچاتے نہیں. یہی معصومیت جو ان کے چہرے سے بھی جھلکتی ہے دیکھ کر خاموش رہ جاتے. تختی کر رہا ہوں شاعری کی تختی دنیا بارے میں عارف صاحب تختی کرنا ہو تختی کرنا ہو یا تختی پر کاپی پر شعر کی تختی پر شعر لکھنا ہو تختی کر دیتے ہیں. وہ جھوٹ نہیں بولتے, سچ بول کر بڑے ہوتے ہیں. میں جھوٹ بولنے پر جو آمدہ ہو گیا جھوٹ بولنے پر جو آمدہ ہو گیا سچائی مجھے ڈھکیل کے آگے بڑھ گئی. روش پہ ہے لکھتے فشاں گلاب کے پھول, میں گلاب کے پھول ارغواں گلاب کے پھول. انہیں اپنوں کے بچھڑنے کا غم بھی ہے. روش پہ پھول کھلاتے ہیں, گلزاروں کی بات کرتے ہیں. چھوڑ گئے جو تنہا ہم کو, ہم ان پیاروں کی بات کرتے ہیں. روش کی مجھے یہ روش بے حد سے زیادہ پسند ہے کہ وہ کوئی بھی بات زبان سے نکلتے ہی اپنے ذہن و دل میں قید کر دیں. تاریخی یا تہنیتی خطا کے لیے کہے تو کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. مجھے ایوارڈ ملنے پر اور میری کئی کتابوں پر تاریخی اور تہنیتی خطاط انہوں نے کیے. یہ ہر کسی کے ساتھ بھی ان کی اسی طرح سے پیش آتے. روش یہ کچھ ایسے ٹہر رہی ہے سبا, روش یہ کچھ ایسے ٹہر رہی ہے سبا کہ جیسے ہو کہ تیری راہ گزر سے گئی. روش سے میں 16 سال چھوٹا ہوں مگر مجھے وہ ہمیشہ میرا حکومت ہوا. تو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ اللہ مجھے بھی ان کی عمر لگائے اور اسی روش پر چلائے. کیا کہیں روش کو دیکھے تو 1984 سے لے کر 2019 تک وہ 18 کتابوں کے خالق ہیں. 1984 میں جب روش کی مختصر نظموں کا مجموعہ پیمانہ روش آیا تو وہ پیمانہ بھرا ہوا نہیں تھا. انہوں نے اس پیمانے کو روش پر لا کر رکھا. پہلی دوسری اور تیسری پھوار سے اس کو تر و تازہ کیا, اس میں کچھ خوشبو ڈالی, پھولوں کا رس اس میں بھرا. جب اس میں سے بھیلی بھیلی خوشبو آنے لگی تو بھیلی بھیلی روش بھی اس میں پیمانے کو بھرا اور اردو مسکن میں پیمانہ لبریز ہوا اور عباس متقی نے اس پیمانے کو چھلکایا. کیا 3 کتابوں کی رسمیں جرا تھی اردو مسکن میں, معلوم شکیل کی, سبی اللہ سبی کی اور یوسف علی صاحب. ان کی شاعری میں خوشبو ہی خوشبو ہے. وہ اپنے اندر ادراک و احساس رکھتے ہیں. قدم قدم پر جو بھی منزل ہو مہکتی باتیں کرتے ہیں. مجھے جب لکھا تو بارش انوار ہوئی,
शेर और सुखन की बातें हुई तो रंग बिरंगी गुलदस्ते तैयार हुए, बीनी बीनी रोशनी के जरिए एक समा बांधा और इस रोशनी में वो सुखन तरा हुए। रविश असर से इनकार बहुत मुश्किल है, रविश असर से इनकार बहुत मुश्किल है। रविश ने सिले की परवाह किए बगैर चमन में गुल खिलाते रहे। इनकी खिदमत को अवार्ड और तौसीफनामों ने नवाजा गया। वो कहते हैं ना मैं ताजिर उनका ये शेर सुनिए आप, ना मैं ताजिर सुखन का हूँ, मैं ना ताजिर सुखन का हूँ, ना मैं शायर हूँ बाजारी, है सीधी सादी मेरी शायरी इबहाम से आज। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत दिखला देंगे जो शायर है वो करते हैं अदाकारी। वाह, दिखलावे के जो शायर हैं वो करते हैं अदाकारी। लम्हा लम्हा मोतबर इनका जवाबी गैर मियारी। इनकी हक़गोई और बेबाकी को देखने उन्होंने अपने तमाम असातिज़ा के नाम लिखे। कोई भी अपने असातिज़ा के नाम नहीं लेता है। एक ऐसा एक साहब का वाक़या सुनाता हूँ, मरहूम है, कि उन्होंने बहुत बड़े उस्ताद से तस्वीर ली और एक जमाने तक ली, आखिरी वक्त तक, मगर जब आखिरी वक्त आया तो किताब छापे तो उनका नाम ही किताब में भूल गए और अपने दूसरे नए उस्ताद का नाम लिखे, पैसे वाले थे। इन्होंने अपने तमाम उस्तादों के नाम लिखे, जिसमें मैं बताता हूँ आपको कि रऊफ अली साहब, सरदार अंजुम, इस्माइल खां परवाज दक्कनी, नसीर बियाबानी, मसरूर आबेदी और डॉक्टर फारूक शकील हैं। वरना आजकल के शायरों की तरह उस्ताद बदलते रहते हैं, इनका नाम लेना गवारा नहीं करते। और आजकल उस्ताद शायरों में चल रहा है, जहाँ मारिजा हो, मुशायरा हो या मुनासिब नजराना मिलता है, उस्ताद शायर जो एक दूसरे के खिलाफ में बैठ जाते हैं और गैर पैसा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल यूसुफ रवी साहब के बारे में मैंने लिखा था कि बकौल समीउल्लाह समी, वक्त हूँ हर एक लम्हे का निशान रखता हूँ, वक्त हूँ हर एक लम्हे का निशान रखता हूँ, गर्दिश दौरा की सारी दास्तां रखता हूँ। रवीश साहब के लिए मेरी यही दुआ है कि वक्त दुआ में दिल से एक दुआ करूं, मैं रब्बे कायनात से ये इल्तिजा करूं, तू खुश रहे तो शाद रहे, तेरे दिल का आंगन आबाद रहे, तू हर पल यूं ही हंसा करे, तू फूलों के मानी खिला करे, तेरी जिंदगी में कोई गम न हो, तुझे किसी से कोई गिला न हो, तेरे लब पे कोई आह न हो, तुझे दिल मांगे वो अता करे। 80 साल का ये नौजवान 18 साल का लगता था और अभी भी इसी तरह फुर्तीला था। दुआ की सूरत में उसकी खातिर जो मेरे होठों से लफ्ज निकले, जो मेरी आंखों से अश्क निकले, उन्हीं के बदले में ऐ खुदाया तू जब भी उनका नसीब लिखना, उरूज लिखना, कमा लिखना, कभी ना लफ्ज़ ज़बान लिखना। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और उनकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि वो कभी किसी के साथ नाराज नहीं होते थे। अगर किसी के साथ कुछ हो गए तो फौरन आके आप माफी मांग लेते, ये उनकी बहुत अच्छी आदत। क्योंकि मैं यूसुफ अली साहब के साथ ज्यादातर इसी जगह पे रहा हूँ, हमेशा उनके साथ यहाँ पे आते रही है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब भी वो मुझे कलाम भिजाते मजमे जौहर के लिए, फोन करके पूछते कि सलीम साहब आप कलाम पढ़े या नहीं पढ़े, अगर पढ़े हैं तो बोलिए, मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ, और वो अपनी डायरी में लिख लेते थे। इसी तरह हमारे पास एक शायर थे रऊफ रहीम। रऊफ रहीम की भी यही हालत थी कि वो अगर अखबार में उनका एक लाइन आ जाती उनके नाम की, तो वो लाइन काट के अखबार में लगा देते। उसके बाद मैं दूसरा देखा, यूसुफ रवी साहब जो है 4000 मुशायरे जो पढ़े हैं उसकी पूरी तफसील लेकर आए थे। वो हमारे इस्मार्ट साहब के घर में बैठे थे, दावत थी वहाँ पे, सबको उन्होंने बताया। और हर चीज, कई किताबें, कई डायरियाँ, उसमें ये जो है हर एक के बस की बात है, क्योंकि हम भी छपते हैं, आप भी छपते हैं, आप भी लिखते हैं, आप भी लिखते हैं, रिकॉर्ड रखना बहुत बड़ा काम है। बहरहाल मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे बहुत ही अफसोस है कि वो वक्त से पहले चले गए,
जाना तो जो है हमको था, क्योंकि हम जो है उस खबीर के नहीं है, हम अच्छे शायर हैं, अच्छे अदीब हैं। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की फिरदौस में लगा दे। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मुमताज सलीम साहब, नायब सदर शाहजहां कॉलेज शोबे उर्दू और वाइस प्रिंसिपल और सदर शोबा नामवर सहाफ़ी और अदीब। अब मैं जनाब ज़हूर ज़हीराबादी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना यूसुफ रईस साहब पर लिखा हुआ ताज़ियती कलाम पेश करें। जनाब ज़हूर ज़हीराबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके बाद तकरीर के बाद अच्छा हाँ ठीक है हर एक तकरीर के बाद इजाज़त है। इरशाद मोहतरम सैयद यूसुफ रईस साहब के बारे में जितना भी लिखा जाए कम है। अभी मेरे जहन में आए 4 मिसरे शायद टूटे फूटे जो भी मैंने एक खराज अभी तक पेश करने के लिए लिखा हूँ वो पेश करता हूँ। बड़े प्यारे यूसुफ रवीश थे हमारे, बड़े प्यारे यूसुफ रवीश थे हमारे, बहुत सीधे यूसुफ रवीश थे हमारे, बहुत सीधे यूसुफ रवीश थे हमारे, बड़े प्यारे यूसुफ रवीश थे हमारे, बहुत सीधे यूसुफ रवीश थे हमारे, मोहब्बत खुलूस और वफा का थे पैकर, मोहब्बत खुलूस और वफा का थे पैकर, फरिश्ते से यूसुफ रवीश थे हमारे, मोहब्बत खुलूस और वफा का थे पैकर, फरिश्ते यूसुफ रवीश थे हमारे, फरिश्ते से यूसुफ रवीश थे हमारे, फरिश्ते से यूसुफ रवीश थे हमारे। अभी जनाब ज़हूर ज़हीराबादी साहब यूसुफ रईस साहब पर किलबदी लिखा ताज़ियती खता पेश कर रहे थे। अब मैं डॉक्टर नाजिम अली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर अंदाज में इजहार ख्याल फरमाएं। मज़ामीन पढ़ेंगे लंबा, मज़ामीन को वक्त ज़्यादा हुआ। जनाब नाज़िम मोहम्मद साहब और मोहतरम सामिर इकराम, आज यूसुफ रईस साहब की रहमत पर इस ताज़ियती जलसा मुनक़िद किया जा रहा है और यूसुफ रईस साहब की शख्सियत में हमदर्दी, खुलूस, सादगी और बहुत ये ईमानदार शख्सियत थी, क्योंकि जब उनसे मुलाकात होती थी तो बहुत सादगी का मुजाहरा करते थे, छोटे हों बड़े हों सबसे शफाकत से पेश आते थे। नादी भाई की अदबी दीवान खाने में कई मतलब उनसे मुलाकात हुई, मुशायरे और अदबी दासों की मेरी उनकी मुलाकात यहाँ एक स्कूल है पंजेशा में, वहाँ पर वो मुशायरा पढ़े थे और गज़ल भी सुनाए थे, वहाँ भी वो मुलाकात रही। बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर है वो हुआ, हर लफ्ज़ को वहाँ का माला चलना है। यूसुफ रईस साहब बहजे के शायर, उनके कारनामे बहुत वसी और अरफा है।
क्योंकि उन्होंने खताब भी लिखे हैं, गज़लें भी लिखी हैं, नज़में भी लिखी हैं, और फिर वो 4000 मुशायरे जो पढ़े हैं वो भी एक मेमोरेबल अमल है तारीख साज। तो ये हर शायर बड़ा से बड़ा भी शायर हो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखा, बेशक। लेकिन यूसुफ रवी साहब ने नादिर साहब ने कहा कि उसकी तमाम तफसीलात भी मौजूद हैं। तो बहरहाल एक शायर में इतना डिसिप्लिन ज़िंदगी के ताल्लुक से जो निज़ाम मुलाकात है उसको भी उन्होंने जो किया है उस पर चलते रहे। और दूसरी अहम बात है कि मैं भी हमेशा ज़रा परेशान हुआ करता था कि याकुतपुरा हो पोटियाली जाओ, वो साइकिल पे जाते थे। तो मतलब मुलाकात हुई के बात करें सवाल माली साहब, अरे मैंने भाई आप अपनी उम्र में आप साइकिल ले ली, इससे ज़रा बदन भी हल्का होता, थोड़ा वर्जिश भी होती मेरी। तो इस तरह से वो उम्र को देखा करता है, इतना सादा आदमी, और वो एमटेक इंजीनियर है, आईडी पे उन्होंने काम भी किया है। तो बड़ी जिंदगी के हर मोड़ पे, जिंदगी के हर चाहे मामला में बड़ी सादगी उन्होंने दिखाई थी। बहुत सादा इंसान थे। मैंने कुछ मजमून लिखा था लेकिन अब टाइम नहीं है। लेकिन बहुत से हजरात ने, क्योंकि उन पर कुछ ऐसे ऐसे अशार लिखे हैं जो तहमीदी अशार हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं, अगर आप इजाज़त क्योंकि। और वैसे जुल्फ़ा सलीम साहब ने उनकी तसानीफ का भी जिक्र किया है। थोड़ा माइक खरीद कीजिए। और फिर पैमाने रवीश और लंतरानी, दूसरी फवार, महज की बातें, तीनी तखारी का खुलासा, और तीसरी फवार, खतार, खुशबू ही खुशबू, ताबेश, नाफिया, मजमुआ, इदराक में एहसास, गुलदस्ते रंग रंग, तहनीकी ताबियत खता, शेर सुखन की बातें, कदम कदम मंजिल, नाजिर मदूदी के शुगर फल पर गिरे मज़ामिन का इंतखाब, और बारिश अनवार, हमद नात, मनखबत, सलाम व खतात का मजमुआ, मुशायरे ही मुशायरे। और फिर उर्दू शायरी में मुरवी मुफरद और मुरक्कब बहरे, गुलदस्ते सुकुन, और बाब सुकुन, चंद औराख, भीनी भीनी रोशनी, और फिर इस तरह से तहनीदी कलाम। और इसमें जो है तसानीफ उनकी मौजूद है, उसने कहा कि 18 तसानीफ है। तो जब इतना बड़ा काम उर्दू ज़बान अदब में उन्होंने तकलीफ़ी अंजाम दिया है, तो भाई ज़रूर हिंदुस्तान की जामियात, खासतौर तेलंगाना की जामियात पर इन पर पीएचडी का काम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिसर्च शायर बहुत मेहनत करता है, बहुत कुछ लिखता है, शेरी सरमाया को छोड़ जाता है, और अपने शेरी सरमाया के ज़रिए से एक रहनुमा का, एक रहबरी का, समाज मिलत माशरे के लिए काम करता है। तो लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, तेलंगाना यूनिवर्सिटी हो, वहाँ यूसुफ रवी फ़न और शख्सियत पर काम होना चाहिए। और हजरात, क्योंकि बहुत से हजरात ने उनकी शख्सियत पर और उनके कारनामों पर तहरीक तौर पर अशार उन्होंने पेश किए हैं, उस पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालते हुए आगे बढ़ूंगा। हलीम बाबर ने कहा, हलीम अपना रफीक आले पैगंबर रवीश भी है, इंसानियत के खुलूस का पैकर रवीश भी है। और यूसुफ रवीश अपने बारे में कहते हैं, लाखों सुखनवरों में सुखनवर रवीश भी है, बहरे सुखन का एक शनावर रवीश भी है। इसी तरह अली बाबा दर्पण, इतना खुलूस, इतनी लगन उर्दू अदब से कुछ लोग और भी हैं, यहाँ पर रवीश भी है। हुसैन जुमरा साहब ने भी शेर व सुखन का एक समंदर रवीश भी है। गुलशन में शायरी के गुलेतर
रवीश भी है, और डॉक्टर नादिर मरूसी ने भी तरह की ऐसी उन्होंने पेश किया है उनके कलाम उनकी शख्सियत पर। आज़ाद शायरों में कलंदर रवीश भी है, आज़ाद जिंदगानी का टाइटल रवीश भी है। इस तरह से खाली अनीस अहमद अनीस ने भी कहा कि सोज व गुदार कुतुब का मजहर रवीश भी है, अफकार दिल नवाज का पैकर रवीश भी है। फिर मोहम्मद जाहिद हरियाणवी वली मोहम्मद, इल्मे अरूज में भी तू है कामयाब, अहबाब की निगाहों में बरतर रवीश भी है। इस तरह से ताज मुस्तर ने भी कहा, ये बात और है कि मिलनसार है मगर दुश्मन के हक में फिर भी वजनफर हुई। तो इस तरह से ये की पूरी सिफात इन लोगों ने वो अपने इस तहनीती अशार में उन्होंने पेश किए हैं, जिसमें उनकी शख्सियत भी जलवागर है और उनके कलाम की खुशियात भी हमें इसमें मिल जाती हैं। और बहुत से लोगों ने भी जो क्या है ये इस तरह के तहनीती अशार किसी लोगों को लिखे हैं। तो इस तरह से यूसुफ रवी साहब की सीरत, शख्सियत, हयात के मुख्तलिफ मुतनों पहलुओं को उन्होंने अपने अशार में पेश किया है। उनकी सलाहियत, सिफात, काबिलियत और कलाम की खुशियात का जिक्र किया है। और इस तरह से अब आप देखें यूसुफ रवी साहब का कलाम, मैंने महसूस किया है वही कहता हूँ मैं कि तीरगी बाअसर ना हो जाए, रोशनी दर बदर ना हो जाए। और फिर उसके बाद खुशी के जाम जमाने में बांटता हूँ मैं, चलता फिरता मोहब्बत का मैदा हूँ मैं। खुद को बड़ा समझने का सारा फसाद है, अपने खिलाफ जंग ही असली जिहाद। बड़ी बात है, गौर कीजिए आप साहब। फिर बढ़िया खुद को बड़ा समझने का सारा फसाद है। इससे बड़ा होता है इंसान के साथ, खुद को कभी बड़ा नहीं समझना, बिल्कुल नाकस, बिल्कुल नाचिस समझना चाहिए। बेशक अपने खिलाफ जंग ही असली जिहाद। असल जिहाद तो वही है साहब, खुद अपनी तरबियत, अपनी तहजीब, अपनी तकलीफ होना चाहिए, अपनी तकलीफ होना चाहिए। और झूठ और धोखा क़यामत में नहीं, मुंसिफी यहाँ की अदालत में नहीं। ये कलम कब है, एक दिया है शायर का कागजों के चेहरों पर हो, तो इन अशार से हालात हाजरा और नफ्सियाती दाखिली मसाइल पर उन्होंने तर्जुमानी भी की है और उल्फत और मोहब्बत को आम करने की अपने अशार से उन्होंने कोशिश की है। मुख्तसर बहरों में पुरअसर अंदाज से अपनी बात को पेश करते हैं यूसुफ रवी साहब। और फिर अल्फाज भी बहुत सादा और बहुत मौसर होते हैं। और इस तरह से क्योंकि बहुत सी उनकी खिदमत है, अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दें और इनकी खबर को नूर से भर दें। और इसी कलमा के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे डॉक्टर नाज़िम अली साहब, सादर प्रिंसिपल मोड़तार डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद। अब मैं जनाब कारी अनीस अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ताज़ियती कलाम पेश करें। कारी अनीस अहमद साहब। कलाम का नहीं वैसा नहीं, एक तकरीर एक कलाम ऐसा करके ख़त्म करें तो आप लोग देर हो जाती। अब वो करूँगा मैं कि उसका रखूँगा नातिया आपके आपसे सोचते कब क्योंकि शैतान से वापस था। नहीं वो बराबर नहीं, जलसा कर दो तो जलसा करने के बाद में फिर रखिए, फिर उसके बाद ताज़ियत का मतलब समाज फरमाया। जाना है शायद इनको, जाने दो।
आइए सर खत्म हो गया बहुत अच्छी बात है बहुत खुशी की बात है जी इरशाद यूसुफ रविश की याद है दिल में बसी हुई यूसुफ रविश की याद है दिल में बसी हुई तनवीर थी सरापा मोहब्बत की प्यार की यूसुफ रविश की याद है दिल में बसी हुई हाय ये मुखलसीन में कैसी कमी हुई फैली हुई थी जिनसे मोहब्बत की रोशनी फैली हुई थी जिनसे मोहब्बत की रोशनी पैकर बने हुए थे वो इखलास व प्यार का हर तहनीयत में उनकी थी उल्फत अजीब सी हर तहनीयत में उनकी थी उल्फत अजीब सी हुस्ने अमल का खुल्द से मौला दिया सिला हुस्ने अमल का खुल्द से मौला दिया सिला आगोश खुल्द इनसे हुई फिर हरी भरी आगोश खुल्द उनसे हुई फिर हरी भरी जो मरहला था कब्र का आसान हो गया नातों से उनकी फैली लहद में जो रोशनी नातों से उनकी फैली लहद में जो रोशनी यूसुफ रविश का हौसला सबको मिले खुदा यूसुफ रविश का हौसला सबको मिले खुदा है तेरी बारगाह में अपनी दुआ यही है तेरी बारगाह में अपनी दुआ यही आखिरी शेर सुना नादिर के इस मकान में आमद थी बारहा नादिर के इस मकान में आमद थी बारहा अब क्या है उनकी याद ही बाकी यहाँ रही अब क्या है उनकी याद ही बाकी यहाँ रही नादिर के इस मकान में आमद थी बारहा अब क्या है उनकी याद बाकी यहाँ रही है ये दुआ अनीस की ताअत में हो बसर है ये दुआ अनीस की ताअत में हो
हमारी रही जितनी भी जिंदगी है हमारी रही है ये दुआ इसकी तात में हो बसर जितनी भी जिंदगी है हमारी रही सही ये थे कारी अनीस अहमद साहब जो हजरत यूसुफ रईस साहब पर ताज़ियती कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं जनाब हलीम बाबर साहब से जो बज़्म मुहज़्ज़ब के मोतमद भी हैं, महबूब नगर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इजहार ख्याल फरमाएँ। जनाब ताज़ियती कलाम या जो भी इजहार ख्याल मैं तभी के शुरू कर रहा हूँ कि और मैं माइक सामने लीजिए। शरीयत आशना तुम थे, शरीयत आशना तुम थे, तरीकत की रिदा तुम थे। अरे बहुत अच्छा। शरीयत आशना तुम थे, तरीकत की रिदा तुम थे, मोहब्बत की फदा तुम थे, शराफत की आता तुम थे। शरीयत आशना तुम थे, शरीयत आशना तुम थे, तरीकत की रिदा तुम थे, मोहब्बत की फदा तुम थे, शराफत की आता तुम थे। और देखिए तुम्हारे साथ गुजरे दिन बहुत हमको सताते हैं, तुम्हारे साथ गुजरे दिन बहुत हमको सताते हैं। जुलूसो दर्द उल्फत का हसीन सिलसिला तुम थे, जुलूसो दर्द उल्फत का हसीन सिलसिला तुम थे। हसी चेहरा अदा पुस्तर बहुत ही दिल नशी खामत, हसीन चेहरा अदा पुस्तर बहुत ही खुश दिल नशी खामत, मुकम्मिल शख्सियत दिलकश बड़े ही दिलरुबा तुम थे। शख्सियत दिलकश बड़े ही दिलरुबा तुम थे। और निकल पड़ते थे बारिश में, नहीं थी धूप की परवाह। निकल पड़ते थे बारिश में, नहीं थी धूप की परवाह। बड़े ही आज़म के मालिक हमारे रहनुमा तुम थे, बड़े ही आज़म के मालिक हमारे रहनुमा तुम थे। देखिए नबी के सच्चे हीरो पैरों थे, नबी के सच्चे पैरों थे, गुलामे किबरिया तुम थे। नबी के सच्चे पैरों तुम थे, गुलामे किबरिया तुम थे। हमेशा हमने देखा है तलबगारी दुआ तुम थे, हमेशा हमने देखा है तलबगारी दुआ तुम थे। और नबी का चाहने वाला वली से कम नहीं होता, नबी का चाहने वाला वली से कम नहीं होता। नबी के सच्चे आशिक थे, खुदाई बाखुदा तुम थे। नबी का चाहने वाला वली से कम नहीं होता। नबी के सच्चे आशिक थे, खुदाई बाखुदा तुम थे। काफी सर है महजिब एक नशा थे, महजिब एक नशानी थे, खुदाए दिल भरी में तुम। महजिब एक निशानी थे, खुदाए शायरी में तुम। अदब की जिंदगी में नुमाया राबिता तुम थे। बहुत सही बहुत अच्छी बात। महजिब एक नशा थे, खुदाए शायरी में तुम। अदब की जिंदगी में नुमाया राबिता तुम थे। तड़प जाता है ये बाबर, तड़प जाता है ये बाबर तुम्हें मरहूम लिखने पर। तड़प जाता है ये बाबर तुम्हें मरहूम लिखने पर। तुम्हारी खूबियाँ जिंदा बड़ी बातबा तुम थे। तड़प जाता है ये बाबर तुम्हें मरहूम लिखने पर। तुम्हारी खूबियाँ जिंदा बड़ी बातबा तुम थे। शरीयत आशना तुम थे, तरीकत की रिदा तुम थे, मोहब्बत की फदा तुम थे, शराफत की अता तुम थे।
یہ تھے جناب حلیم بابر صاحب معتمد بزدو علم و ادب جو منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں جناب ڈاکٹر راہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. جناب ڈاکٹر راہی صاحب معتمد بزم جوہر. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الناس من يكون الناس. قدر علی قدر معززین احباب شورا ادیب نقدی سامعین، یوسف رویش پائے کرے حق الیقین. یوسف رویش پائے کرے حق الیقین اسرار بالغرائب شخصیت. جناب یوسف رویش ایک فرشتہ خصلت، حق نما، نیک طینت انسان تھے جن کے صدق و صفا اور انسان دوستی کی قسم کھائی جا سکتی ہے. وہ خانقاہی طریق کے نیک کو ہما صفت سادہ انسان، انہیں آپ ہما رنگ عجوبہ روزگار، نادر العجائب، اسرار بالغرائب شخصیت کہہ سکتے ہیں. بظاہر پاک و صاف، سیدھی سادی شخصیت، سیدھی سادی شخصیت، مزاجن باغ و بہار، طرحدار، نہایت وزہدار، دل فگار، سائیکل سوار، پراسرار، رنگدار، خوشگوار، افتخار، عز و وقار، پہلودار، زرنگار، دل فگار، قابل افکار، پہلودار، روشن اظہار، تخلیق کار، نادر الافکار، فنکار، عجیب الاسرار، سوائے نگار، استاد فکر، شاعر و نثار، مکتوب نگار، فکر دل فگار، مزاجن سوائے نگار، انشاء بردار، افسانوی افکار، تذکرہ نگار، لائق تخلیق کار، لائق دید، پہلی فوار، پیمائش فکر، دوسری فوار، لنترانی مہکتی باتیں، تیسری فوار، لائق مطالعہ، خوشبو ہی خوشبو، کعبہ عشق، نعتیہ افکار، احساس و ادراک، لائق افکار. یوسف رویش کے بڑے بھائی رؤوف خلیش اصل میں میرے دوستوں میں شامل تھے. ملک پیٹ جدید میں شعیب اللہ خان شہید کے نام سے موسوم شہید میموریل، شعیب میموریل لائبریری ہمارے مطالعے کا قدیم مرکز تھا. وہاں اکثر کتابوں کے مطالعہ اور وہاں سے کتابیں گھر لے جانے کی غرض سے آنا جانا لگا رہتا. اور چنچل گڑا قدیم ہائی اسکول کے، ہمارے قدیم ہائی اسکول کے کلاس میٹ سید محمد سید فضل الحق، برادران ڈاکٹر زیب النساء ایم ڈی، جسے ہم لوگ زیب الناپا کے نام سے پکارتے اور گھر آتے جاتے تھے. سید علی اکبر انجینئر، ان کے شوہر نامدار جو اکبر ٹاور کے خالق تھے، ہمارے محترم بھائی جان ہیں. ان سے ہم بہت ڈرتے تھے. اور دوسری اہم وجہ وہاں ایکسرسائز کرنے کے بعد ہم لوگ بار کرنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے اور رؤوف خلیش سے ملاقات بھی ہو جایا کرتی تھی. یوسف رویش سے تو خیر 30-35 سال ادھر موضوع جوہر کے دیگر مشاعروں کے ضمن میں ملاقاتیں ہوئی. میں بہت کم مشاعروں میں شرکت کرتا تھا. شہر میں 4 کلینک دیکھتا تھا. ہمتاً مصروفیت کی بنا پر سوائے بزم جوہر کے ماہانہ ترین مشاعروں کے اور بعض خاص مشاعروں کی شرکت کے دیگر مشاعروں میں شرکت غیر یقینی ہوا کرتی تھی. لیکن یوسف رویش برابر ہمارے ماہانہ مشاعروں میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا کرتے تھے. بہت مخلص، شریف النفس اور نیک خوب، وقت کے پابند ہی نہیں، صوم و صلوات کے بھی پابند، بے ضرر اور
अदबी ग्रोहबंदी के खिलाफ आजाद मुनिश गैर जानिबदार अपने मिजाज के मुनफरिद इंसान थे। सादगी इनके मिजाज का खासा थी। दो टोक गुफ्तगू के आदि मिजाजदार जी हुजूरी इनको छूकर भी नहीं गुजरी थी। वो जी हुजूरी इनको छूकर भी नहीं गुजरी थी। वो मर्द खलंदराना वो सूफियाना थे। इखलास और मुरव्वत मेहर और मोहब्बत की तस्वीर उनसे एक बार मिलने वाला बार बार मिलना पसंद करता था। साहिब किरदार ही नहीं साहिब गुफ्तार भी थे। आशिक रब्बानी, पीर लासानी, सूफिया सुल्तानी, शायर फुरखानी भी थे। शायर भी हर महफिल में शरीक महफिल ही नहीं बल्कि मुशायरे के मेहमान खुसूसी के लिए तबरी के सुखन तहसीन सुखन भी पेश करना नहीं भूलते थे। इस तरह उन्हें सुखन सरा देखकर मुझे अपने उस्ताद अव्वल हजरत मोहम्मद अब्दुल गफ्फार रफीक हैदराबादी जानशीन हुर्मुस की याद ताज़ा हो जाती थी। क्योंकि हजरत रफीक हैदराबादी भी महफिल मुशायरा में अपना कलाम सुनाने से कबल महफिल के मेहमानान खुसूसी हजरात के लिए फिल बदी तहनीती खतात जरूर सुनाया करते थे और उनको तारीखी खतात फिल बदी सुनाकर दाद लेने का जुनून की हद तक शगफ था। वो भी हिजरी वो ईसवी में खत तारीख एक ही खत तारीख जिसमें ईसवी तारीख और आपके हिजरी तारीख भी जो है का एहतमाम होता था। ये हजरत की मुनफरिद खुसूसियत थी। यूसुफ रवीश मरहूम जिनको मरहूम लिखते हुए कलेजा मुंह को आता है, जिनकी कमी शिद्दत के साथ महसूस होगी। मैं अब इसको इख्तिसार के साथ करते हुए एक शेर पर अपना ये इख्तिताम करता हूँ कि बखौल शायर हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में विरह रियाज फतेहपुरी को याद दिला।